آج پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں بنیادی حقوق کو کیسے ضبط کیا جا رہا ہے۔ آج اس وقت زمان پارک میں ہم موجود ہیں۔ ہمارا ریلی کا ٹائم ہے آج، اور ریلی ابھی کچھ ہی دیر میں شروعات ہونے والی تھی۔ زمان پارک کے ارد گرد تمام راستوں کو کنٹینر سے بلاک کر دیا گیا۔ ہمارے کارکنوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ہماری پبلسٹی، جھنڈے آ رہے تھے یہاں پہ، اس گاڑی کے اوپر حملہ کیا گیا ہے۔ اور یہ جو سو کالڈ غیر جانبدار حکومت ہونی تھی ہماری قائم مقام، آج میں اس سے پوچھتا ہوں کہ تمہارا تو واحد آئینی اور قانونی مقصد انتخابات کرانا ہے، اور 30 اپریل کو انتخابات کا سپریم کورٹ کے ذریعے اعلان ہو چکا ہے۔ صدر پاکستان نے اعلان کر دیا ہے، آج شیڈیول جاری ہونا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 7 دنوں کے لیے شہر میں کوئی سیاسی سرگرمی یا کوئی ریلی جلوس نہیں نکلے گا۔ تو یہ کس چیز کا الیکشن کرا رہے ہیں آپ اگر سیاسی ایکٹیویٹی نہیں ہوئے گی؟ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ جو ہماری حکومت ہے زرداری کے بچے کی، یہ حکومت غیر جانبدار نہیں ہے۔ یہ حکومت کہیں سے ڈکٹیشن لے رہی ہے۔ رات کے وقت میری خود ایس ایس پی آپریشن سے بات ہوئی سیکیورٹی پلان کے حوالے سے، اور ابھی چند منٹ پہلے متنازع حکومت جو مسلط کی گئی ہے محسن نقوی صاحب کی، اس نے لاہور کے اندر پابندی عائد کر دی ہے کہ جی کوئی جلسے جلوس نہیں ہو سکتے۔ دراصل یہ عمران خان کا خوف ہے جو ان کے اعصاب پر سوار ہو چکا ہے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ اصلی ببر شیر جب زمان پارک سے نکلے گا تو سارے چوہے اپنی بلوں میں گھس جائیں گے۔ اور یہ آج آپ دیکھیں، کیا ہم جمہوریت میں ہیں؟ میں پوچھتا ہوں، کیا اس ملک میں اس ملک کے اندر کیا جمہوریت کا اب بھی نفاذ ہے؟ کیا آئین اور قانون اب بھی لاگو ہوتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 30 اپریل کو آپ کا الیکشن ہے اور ریلیاں اور جلسے جو ہیں آپ منسوخ کر رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی حکومت جس کا مقصد ہی الیکشن کرانا ہے، وہ کہیں سے ڈکٹیشن لے کے راستے بند کر رہی ہے، ڈنڈا بردار لوگ جو ہے وہ ارد گرد کھڑے ہیں ان کے؟ یہ جمہوریت نہیں ہے۔ میں اپنے کارکنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سارے لوگ اب رستے میں ہیں، اور رات کو سیکیورٹی پلان جو ہے وہ انتظامیہ نے کلیئر کیا ہے۔ انتظامیہ نے رات کو سیکیورٹی پلان کلیئر کیا ہے، ہمیں گو ہیڈ دے دیا گیا ہے، اور آج یہ ہوا ہے تو کارکن جہاں جہاں موجود ہیں پرامن رہیں۔ رانا ثناء اللہ لاشیں چاہتا ہے، رانا ثناء اللہ خون چاہتا ہے۔ یہ بدکار، بد دیانت، نااہل رجیم خون چاہتی ہے، تاکہ اس خون کی بنیاد بنا کے پاکستان میں جمہوریت کو معطل کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ ہم ایک پرامن اور آئین اور قانون میں یقین رکھنے والی جماعت ہیں۔ ہم نے اپنے آپ کو، اپنی قیادت کو، اپنے کارکنوں کو رضاکارانہ طور پہ جیلوں میں ڈال دیا، لیکن ہم نے قانون اور آئین کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ اس لیے میں کارکنوں سے دوبارہ اپیل کروں گا، جہاں جہاں ان کے جلوس موجود ہیں وہ پرامن رہیں اور کوشش کریں کہ کسی طرح کلیش نہ ہوئے۔ مجھے پتا ہے کہ کسی جگہ پر پولیس خود حملہ آور ہو رہی ہے پرامن کارکنوں کے اوپر، اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کسی مارشل لا کے دور میں ہم زندہ رہ رہے ہیں۔ یہ کون سی جمہوریت ہے؟ آج پوری دنیا ہمارا مذاق اڑا رہی ہے۔ اور کہا کیا گیا؟ کہا گیا ٹریفک کے نظام کے لیے یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی سارے لاہور کے راستے بند کر دیے اور کہا کہ ٹریفک کے نظام کو چلانے کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ تحریکیں ایسے نہیں رکتی، یہ خوف ہے، ان کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں۔ جب سے الیکشن کا بیگل بجا ہے ان کو رات کو نیند نہیں آتی۔ مولانا فضل الرحمان تو تقریباً رو پڑے تھے الیکشن میں، یہ اپنی پریس کانفرنس میں، کہ الیکشن آگے کرا دو۔ رانا ثناء اللہ کی بھی ایسے ٹانگیں کانپ رہی تھیں کہ الیکشن ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ تو میرے دوستوں، ساتھیوں، کارکنوں، ہم ابھی مشاورت کا عمل ہمارا جاری ہے۔ آپ جہاں جہاں پہ بھی ہیں پرامن رہیں، بالکل مشتعل آپ نے نہیں ہونا۔ ہم آئین اور قانون میں یقین رکھنے والی جماعت ہیں۔ یہ تحریکوں کو ایسے فاشسٹ قسم کے طور طریقوں سے روکا نہیں جا سکتا۔ عمران خان کی آواز آج پورے پاکستان میں پہنچ چکی ہے۔ عمران خان کو گولیوں سے چھلی کیا گیا، ہمارے
कारकुनों को, हमारे कायदीन को उठा कर जेलों में बुरना करके तशद्दुद किया गया, अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, क्या ये तहरीक रुक गई? क्या आज कंटेनर लगाने से इमरान खान गैर मकबूल हो जाएगा? क्या ये जो दो गुड्डा गुड्डी लेकर फिर रहे हो, मरियम और बिलावल, अव्वल दर्जे के नालायक, और ये जो इनके बददियानत किस्म के सरबराहान हैं, क्या ये कंटेनर लगाने से ये मकबूल हो जाएंगे? इस तरह की हरकतों से, इलेक्शन से पहले सियासी एक्टिविटी को रोकने से, बुनियादी हकूक को गस्ब करने से इस तरह हालात मजीद संगीन होते हैं, इस तरह अदम इस्तेकाम बढ़ता है। और ये तो शुक्र करो कि इमरान खान आइन और कानून में यकीन रखता है। तो आज मैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी अपील करता हूं कि फौरी तौर पर आज खुद नोटिस लें इसका कि किस तरह इलेक्शन से पहले जमहूरियत को ही मुंजमद कर दिया गया। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि रैली, जलसे, जुलूस नहीं होंगे, सियासी एक्टिविटी नहीं होंगे, तो फिर तो जमहूरियत खत्म हो गई इस मुल्क में। ये कैसे आपने एक ऐसा निगरान वजीर आला जिसका काम ही इलेक्शन कराना है, वो जमहूरियत को मुंजमद कर रहा है, उसे मुअत्तल कर रहा है? ये बिल्कुल गैर आईनी है, गैर कानूनी है। और हम अदलिया से भी गुजारिश करते हैं कि फौरी तौर पर इस गैर कानूनी ऑर्डर का नोटिस ले और कारकुन उतनी देर पुरअमन रहें, जहां जहां पर भी है पुरअमन रहें और बिल्कुल मुश्तिल नहीं होना। अभी बात कर लें आज मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो मेन फैसला है, अभी हम यहाँ से जाके खान साहब के साथ सारी हमारी सीनियर लीडरशिप मुशावरत के बाद हतमी फैसले का ऐलान किया जाएगा। तब तक कारकुन जहां जहां भी हैं उन्होंने ये बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना, लेकिन मुश्तिल नहीं होना, क्योंकि ये घबराया हुआ टोला, इनके मुंह को खून लगा हुआ है। इनको अपनी बका के लिए, ये जो आखिरी सांसें ले रहे हैं उसके लिए इनको लाशें चाहिए। और इंशाल्लाह मैं वादा करती हूँ कि हम आपको ये काम तो नहीं करने देंगे, लेकिन ये जो प्लास्टिक की चलती फिरती दुकान और वो जो बिलावल, जिसको पता नहीं उसकी अपनी शनाख्त भी बेचारे की खतरे में है। सुना है कि अमेरिका के बहुत बड़े हॉस्पिटल में मेरे और आपके टैक्स के पैसे पे इलाज जारी है। उसके बाद फैसला किया जाएगा कि उनकी असली शनाख्त क्या है, किस तरह का उनका आईडी कार्ड बनेगा। मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बेसिक इंसानी हकूक की पामाली, जिस तरह से आयन और कानून की पामाली, जिस तरह से आयन और कानून को अपने पैरों तले कुचला जा रहा है, जमहूरियत को रौंदा जा रहा है, इसकी तारीख में बदतरीन मिसाल कभी भी नहीं, कहीं भी नहीं मिलती। जब जमहूरियत नहीं थी, जब मार्शल लॉ था, तब भी ये नहीं हुआ। और एक और चीज, आज सबको पता है कि आलमी दिन है खवातीन का, और अभी हमारी जो कारकुनान है वो आ रही थी, उनको ना सिर्फ इन्होंने हरासा किया, उनको डराया धमकाया और उन्हें पुलिस वैन में डालने की कोशिश भी की। तो मरियम प्लास्टिक की दुकान और मरियम इस्त्री, मेरा तुम्हारे लिए पैगाम है, तुम्हारे पास है ये किराए की मछलियां चंद जो आपने इधर उधर से पकड़ी हुई हैं। ये वो खवातीन है जो जज्बे के तहत जान कुर्बान करने के लिए आई हैं। मुझे पता है तुमने बंद कमरे में बड़ी अपनी प्लास्टिक को पिघलाया हुआ था गर्मी कर करके, और बड़ी तुमने ट्रेंड चलाने की भी कोशिश की। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, जो आपके अगले पिछले हिम्मत है, तो ये जो आवाम का समंदर है उसको रोकने की हिम्मत करके दिखाना। हम कानून की बालादस्ती की जंग लड़ रहे हैं। आज इन्होंने अपनी वादे शिकस्त का ऐलान कर दिया, ये फैसला करके, ये फैसला रैली खत्म करने का ये वाज़ेह सबूत है कि ये खत्म हो चुके हैं। ये अमली मैदान में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते, और ये चूंकि सियासत में चारों शाने चित किया इनको खान ने, अवाम ने। और अब ये क्या कर रहे हैं, कभी चूहे किस बिल में घुसते हैं। वो जिसको चूहा सही कहना नहीं आता वो कह रहा था अल्लाह की शान, जिसके बाप की कमर दर्द कभी ठीक ही नहीं हुई, मेरी मुराद बिलावल। और वो बिगौड़ा जो कहती है जिसका पूरा खानदान उसके अपने समेत बिगौड़ा। रैली की जो मैं कारकुनों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, वो तो है ही कामयाब हो गई। तो इन्होंने ये बौखलाहट में आके इसको बंद करने का फैसला किया है। आपको कामयाबी मुबारक। और इन्होंने अपनी शिकस्त के ऊपर खुद अपने दस्तखत कर दिए हैं ये फैसला करके। और ये जो मुसल्लत शुदा टोला है और उनका ये जो 3rd डिग्री का 3rd रेटेड नकवी, मैं कहना चाहती हूँ कि तुम इंटरम सेटअप के लिए चंद दिनों के लिए लाए गए हो और काउंटडाउन शुरू है। और अगर ये बनाना रिपब्लिक नहीं है तो ये नहीं है। आपके जब 90 दिन पूरे होने हैं ना भाई साहब,
फिर हम आपसे पूछेंगे दाल आटे अच्छा, का भाव। एक मिनट, मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ, एक बात मैं ऐड करना चाहता हूँ। हमें अभी दोबारा मुझे इतलात आ रही है कि कारकुनों को मुख्तलिफ जगहों से गिरफ्तार किया जा रहा है। मैं ये लेडीज के साथ, हमारी खवातीन के साथ बदतमीजी की जा रही है। ये सारा कुछ, ये इतने जोगा नहीं है मुझसे नकवी के ये सारा हाँ कुछ जी, करा बिल्कुल। सके। ये किसी से डिक्टेशन लेके करा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये भी है, लोग वहाँ पे लोग footage जहां बनाएं। जहां ये सब कुछ हो रहा है, लोग वीडियोस बना के अपलोड करें। और मैं दोबारा हमारी जो आला अदलिया, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत को मुअत्तल करने की बाकायदा ये हो ही गई। ये बताएं हमारा साहब, ये बताएं, एक तो आपकी रैली का मसला, रैली को रोकने की ये कोशिश आपने जैसे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। दूसरा जो प्लान बी है वो ये है कि यहाँ पे कॉर्डन ऑफ करके जमान पार्क को, इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। क्या आप समझते हैं बलोचिस्तान पुलिस को भी बुलाया गया है लाहौर? ये प्लान तो नहीं है कहीं रैली को हटाने का और गिरफ्तारी का मुमकिन बनाना? देखिए, बात ये है कि अगर ये ऐसा करते हैं, देखें आज तो यहाँ हजारों लोग इर्द गिर्द जमा है रैली के, और रस्ते में है बहुत सारे लोग। तो ये तो इसका मतलब है कि राना सनाउल्लाह तसादम चाह रहा है, खून चाह रहा है, लाशें चाह रहा है। ये एक जाली केसेस के ऊपर इतने चार्ज माहौल के अंदर आप आके इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पे रैली, पहले रैली के लिए यहाँ पे लोग इतने इकट्ठे हैं, सारा कुछ है। हम तो अपने कारकुनों को पुरअमन रहने का ही कहेंगे, लेकिन क्या जो नताइज होंगे उसका कौन जिम्मेदार होगा? ये मॉडल टाउन का जो इंसिडेंट है उसको रिपीट करने की कोशिश की जा रही है। दरअसल असल में मॉडल टाउन इंसिडेंट के अंदर इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। कातिल आज भी दंदनाते फिर रहे हैं। ये वजह है कि इनको दोबारा शय मिली है कि ये जमान पार्क में भी मॉडल टाउन का इंसिडेंट पैदा करने की कोशिश अच्छा, हमारे साहब ये बताइएगा कि इस वक्त मुशावरत होगी पहले दोबारा? जी, दोबारा मुशावरत होगी, मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा कि रैली निकलनी है या नहीं। हम अभी अपने सारे कारकुनों को कह रहे हैं कि वो मुश्तइल ना हो, पुरअमन रहें। खान साहब के साथ हमारी मुशावरत अभी शुरू होएगी और फिर हम अगला हिकमत अमली आपको आके यहीं पे बता देंगे। ये बताइए कि ताली जो है नाफिज कर दी गई है 7 रोज के लिए, तो अगर आप लोग निकलते हैं तो पुलिस फिर आप लोगों को तमाम, देखें, हम तमाम जो वकला हैं, हमारी लीगल टीम है, उनसे हम राब्ते में हैं और उन्हीं से मुशावरत करके इंशाल्लाह ताला ये करेंगे। ये वैसे तो हमें ऑन द फेस ऑफ इट बिल्कुल गैर आईनी और गैर कानूनी इकदाम लग रहा है। और बड़ी अजीब सी बात है कि रात को एसएसपी साहब ओके कर रहे हैं सिक्योरिटी का प्लान, और अभी 10 मिनट पहले ये कहते हैं कि जी 144 लग गया क्योंकि कांपे टांगना शुरू हो गई हैं इस्लामाबाद में। तो ये ऐसे तो नहीं हो सकता ना जी।